Hello everyone, this is Venugopal. Today in this session, we will see how to print the given pattern. First of all, let us understand the organization of this star pattern. Four stars. Okay. Already we have seen in my one of the video where we have printed the square pattern. So in that we have seen this pattern is arranged basically in rows and columns format. For example, we'll consider this is row 1, second is row 2, row 3 and row 4. Similarly, here it is column 1, column 2, column 3 and column 4. Just try to understand, okay, because the pattern is looks like this only. This is the first row. Let us take some help of some tools. This is first row and first column. This star is present. In the second row, this is the second row and there are the two columns, column 1 and column 2. Third row and 3 columns. Verticals are the columns. Fourth row and 4 columns. As we know that whenever we want to deal with the rows and columns, we have to take the help of two loops. तो हम लोग यहाँ पे दो loops लेंगे. एक loop लेंगे I equal to suppose 0, that is anyway I will take from 1. I less than number of columns. Oh, sorry, number of rows. So rows are how much here? 4. So I'll take like less than equal to 4. Then I plus plus. The first loop is for row. The second loop is for column. So j equals to 1. J less than equals to again 4 columns and j plus plus. Inside this, I want to print what? I want to print the stars. So here printf and I have to print star here. Right? Already we have seen one video. Please go and watch if you are having any confusion in this. After that हमने क्या देखा कि एक रो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे printf and here backslash n. Backslash n is for new line. Next line में अगर जाना है तो हम backslash n manipulator यूज करते हैं. So loop ऐसे एग्जीक्यूट होता है. अगर मैंने ये लूप एग्जीक्यूट किया तो आपका पैटर्न स्क्वायर पैटर्न में आएगा जो मैंने लास्ट टाइम देखा था. स्क्वायर पैटर्न में कैसे स्टार 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 एंड लाइक दिस. ये पैटर्न प्रिंट होगा. अगर मैंने ये लूप यूज किया तो ये पैटर्न प्रिंट होगा. बट मुझे ऐसे फर्स्ट एग्जीक्यूशन तो ये मैंने क्यों लिया यहाँ पे, राइट? फॉर आई इक्वल टू 1 व्हेन द वैल्यू विल बिकम आई इक्वल टू 1, जब आई यहाँ पे आएगा j इक्वल टू 1, आई 1 है j 1 है, अंदर आने के बाद ये जो इनर लूप है ये 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा. because 1 is less than equal to 4, 2 is less than equal to 4, 3 is less than equal to 4 and 4 less than equal to 4. दैट मीन्स ये जो पहला रो है ये 4 टाइम्स प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा, राइट? बट यहाँ पे मुझे ऐसे नहीं चाहिए. मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे फर्स्ट रो यानी i इक्वल टू 1 है तो अंदर का भी लूप मेरा एक ही बार एग्जीक्यूट होना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ही स्टार प्रिंट करना है, राइट? जब i इक्वल टू 2 होगा दैट मीन्स रो 2, तो मुझे यहाँ पे ये लूप जो है इनर लूप ये 2 बार एग्जीक्यूट होना चाहिए. दैट मीन्स i जितना है उतने ही बार मेरा इंटरनल j एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग i j लेस देन इक्वल्स टू 4, हम यहाँ पे लेंगे j लेस देन इक्वल्स टू i. विल टेक हियर i.
ओवरराइट हो रहा है, तो मैं इसको कट करता हूँ and I'll take here, instead of this I'll take I value. That's it. अब क्या होगा, I equals to 1, loop will come inside here, it will enter here with the value of I equals to 1, j equal to 1, j less than equal to I. What is I? 1 is less than equals to I, that is I is 1. So एक बार स्टार प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद यहां से वो मॉडिफायर पे जाएगा और j बन जाएगा, j 1 था, अभी j बन जाएगा 2, एंड 2 लेस देन इक्वल टू आई चेक करेगा, आई कितना है, 1 है, कंडीशन विल बिकम फॉल्स, ये डायरेक्टली बाहर जंप करेगा, और बाहर जब जंप करेगा इनर लूप के, तो उसको \n दिखेगा न्यू लाइन के लिए, तो इसलिए कर्सर यहां से हटके यहां पे सेट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, और फिर आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, तो आउटर लूप का मॉडिफायर एग्जीक्यूट होगा, आई 1 था, अब आई हो जाएगा 2, फिर अंदर आएगा j इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू, अभी i की वैल्यू मेरी 2 है और ये 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू, स्टार प्रिंट करेगा, तो ये स्टार प्रिंट हुआ, फिर j इंक्रीमेंट होगा, j इंक्रीमेंट होके 2 होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2, yes, again the condition will become true, again star will be printed, but j बन जाएगा 3, 3 is not less than equal to 2, condition will become false, बाहर आएगा, नया लाइन छोड़ेगा, तो इसलिए यहां से वो शिफ्ट होके नेक्स्ट लाइन में जाएगा। उसी तरह से i जब 3 होगा तो इनर लूप 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा और 3 स्टार प्रिंट करेगा, i जब 4 होगा तो इनर लूप 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा, इसलिए 4 स्टार प्रिंट करेगा। इस तरह से हमारा जो आउटपुट है पैटर्न वो प्रिंट होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली डेव सी प्लस प्लस एडिटर में देखते हैं। पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं हम लोग, देन आई जे, ये दो ही वेरिएबल हमें लगने वाले हैं। मैं डायरेक्टली लूप लेता हूं, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 4। अब ये जो 4 है रोज और कॉलम्स आप यूजर से भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूजर को डिमांड करता हूं और दो यहाँ पे वेरिएबल्स लेता हूं, रो कॉलम, और यहाँ पे यूजर को मैं बोलता हूं कि एंटर रोज, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, स्कैनफ, टू इनपुट्स है तो %d, इंटीजर टाइप के इनपुट्स है तो 2%d, कॉमा एड्रेस ऑफ रो रहेगा और एड्रेस ऑफ कॉलम रहेगा। यहाँ पे पहला जो लूप होता है रो होता है, इसलिए मैं यहाँ पे रो लेता हूँ, कॉमा i प्लस प्लस, देन इनर लूप फॉर कॉलम, फॉर j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 4, सॉरी नॉट 4, हम कॉलम लेते हैं, और j प्लस प्लस, इंटरनल क्या करना है, सिंपली हमें प्रिंट करना है, प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्टार। आपको स्टार प्रिंट करना है तो स्टार कीजिए, पूरे 1 चाहिए तो 1 प्रिंट कीजिए, पूरे 2 चाहिए तो 2 प्रिंट किए, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन प्रिंट हियर, देन प्रिंट एफ, यहाँ पे हमें \n चाहिए, दैट्स इट। सेव करता हूँ प्रोग्राम को, पैटर्न स्क्वायर था, अभी लूंगा पैटर्न 2, एंटर, दैट्स इट। एग्जीक्यूशन करते हैं, रोज एंड कॉलम्स 4 4, सीधा आउटपुट, ओह सॉरी सॉरी, देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया, जो मैंने पहले आपको जो डेमो दिया था पहले लूप का जिसमें चेंजेस नहीं किया था तो स्क्वायर प्रिंट करता है, राइट। अभी मैं सिंपल एक मॉडिफिकेशन करता हूं, यहाँ पे आई करता हूं, जब तक जे आई है तब तक उसको एग्जीक्यूट करो, 4 4
see the output. This is the output that what we want, right? So printing pattern is very easy. Just you need to understand the structure, how it is organized. That is in the form of like rows and columns में होता है. तो पहले एग्जीक्यूशन में कितने बार एग्जीक्यूट होना है, सेकंड में कितने बार एग्जीक्यूट होना है, थर्ड बार कितने बार एग्जीक्यूट होना है फॉर लूप को, ये हमें डिसाइड करना होता है. सो इट्स वेरी इजी. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड the logic of printing pattern too. We will come up with more videos. Till then, bye bye.